Hello, everyone. This is Stephen Christing, and welcome again to the podcast. So, this is the first podcast where we are, instead of delving into the personal journeys of individuals, we are going to talk about a specific topic and bring to you very good scientific stuff. And once again, we have with us Ms. Poornima Ujwal, who is a counseling psychologist who is committed to holistic and evidence-based approach to therapy. She's trained in substance abuse as a counselor, and she's a trauma-informed therapist, and she's also CPR certified. Apart from this, she's the founder of Health Clinic, which is an online platform that is aimed at providing top-tier services, mental health training, and awareness to patients and people with substance use addictions and other mental concerns. So glad to have you back over this. Hi, Stephen. It's so good to be back. Yeah. You have been working as a counselor since quite a while. So could you tell me how has been your experience when you've been working overall, and especially when you dealt with patients who have had some issues with consuming alcohol, smoking, or any other such kind of issues? Yeah, so thank you for asking about my journey, first of all. It hasn't been a straightforward one. You see, addiction in India, while the problem has been known for a while, and we've had medically people working on it since the 70s. Yeah. Unfortunately, even today, there is a lot of difficulties in accessing proper medical and evidence-based treatment. This includes counseling as well. So it has been very difficult to have patients understand the need for mental health care in addiction, or for them to understand that this is something that needs support. There is a huge misunderstanding about addiction being a habit, but Mm. actually it is a chronic, is relapsing illness. Much like the parallel that I give to people is that of diabetes. Much like diabetes, it is something which stays with you for a long time. There are times where you keep having relapses, and there are significant health related issues that one goes through because of this condition. So, this is a huge awareness point from Yeah. which I try to begin any kind of counseling or treatment, be it in my private setup, be it in the government setup, because this is where I think, unfortunately, we've not really understood what exactly addiction is and how does it start and all of those things. So I think a very good starting point of this podcast would be how about you talk us about what is addiction? And especially in these terms, ki alcohol, weed, or smoking, if we are talking about this, what do we mean by addiction? And can you differentiate it with somebody who is just using those things very occasionally? Yeah. So when we talk about addiction, what is very common, right? Mm. We talk about addiction in terms of, oh, I am addicted to this film, I'm addicted to this brand, I'm addicted Mm. to this person, even, right? But the definition here is slightly different. So when we talk about addiction, it is someone who is number one for a really long time. Chronic is the word we use, right? In Okay. technical terms. So for a really long time, dependent on it. When we use the word dependence, what we're trying to say here is that for the person who's addicted, taking alcohol or cigarette or whatever substance they're consuming comes before other aspects of their life, be it work, be it family, be it finances, be it enjoyment. Everything comes secondary to consuming their preferred alcohol, cigarette, or whatever substance they're consuming, right? So that is addiction. Now, somebody who is just going to a party, as a lot of people do, who is just attending a function and has one or two drinks, that person isn't addicted. They are just using it, right? Right. They are consuming it. But there is no evidence, at least, and there is no significant role of them becoming so dependent on it that they can't do other activities without it. Now, Right, right. right? So that is substance use. So we know substance use, which is someone who has no history or no difficulties, and we know addiction with somebody who's completely dependent on it.
Hmm. Now, Okay. abuse is the ground from which addiction starts. Abuse leads to severity in terms of dependence. Abuse is where you are using alcohol or cigarette, but you are doing it to the point that is excessive, that is not healthy for you, but you are doing it. It doesn't mean that you're not doing other things alongside. It's very much possible that, you are continuing your job, you're doing your education and all that. But when you do consume, you consume in quantities that are very problematic. You are consuming it in a way that it might or is bad for your health, and then when that keeps on happening after a certain point, you become dependent on it. So this is how it is different from substance use, which is just, you know, I consumed it once. Correct. Okay. So before we go further, so Hmm. substance use could be just maybe for recreational purpose or something like this. Let's say Correct. somebody goes to a party, has alcohol, or occasionally somebody goes on to smoke, Weddings, right? for instance, Weddings, cocktails, yeah, yeah, cocktails so and on. other events. So that is substance use, while Just use. substance, yeah, He substance ab he used it. hmm. And substance abuse would be when they are using it to great extents, right? Every day, right? And earlier you had, That's not necessary. The regularity can differ actually, and this is where people get confused because it is often possible that you might not be doing it regularly. But when you're doing it in a way that is hmm, not very nice. One very simple example, drink driving is bad for you, and yet you do it. right. Is it necessary? No. Do you think it's possible that when you're drinking, you could get a cab or perhaps wait until the effect of alcohol has gone down and then you drive? Hmm. Yet you do it. That is where it's abused, right? You're using it in a way you know might not be good for you, and yet you're doing it. Right, right, right. So you know that it's having harmful effects on you, but you still do it. Or there is a risk that it might be harmful, but it's not yeah, I like it. Hmm. But that doesn't mean I'm dependent on it. I can't do anything without it, right? Yeah, right, right. So that's Can, where can you things can you become talk different. can you talk a little bit more about a person being dependent on it? Yeah. Sure. So, one of the easiest way to understand the difference between first time somebody just consuming it versus dependence is this a kind of a ladder that counselors use, which is, let's say there is a 21-year-old Stephen, okay, who has for the first time gone to his farewell party in Delhi or Bombay to a nice restaurant which has very good cocktails. And his friends tell him, you know what, Stephen, why don't you try a cocktail, right? Or a beer or anything of that kind. So you try it for the first time. Okay, you really like it, you don't like it. It can differ how you feel about it. But that is just first time use. That is just something that you've tried. Does it Yeah, mean you're addicted? Absolutely not. Does it mean that you be dependent on it? No. But you've just tried it. Okay. So that is the first step. This is how we start climbing the ladders. Okay. The second time, now let's say you found it to be an okay thing. You liked it or you were enjoying the company and so you also enjoyed the drink. Now your friends every weekend when they meet to catch up about life outside of your graduation, whether it is just a general meetup, they say, let's go to that place. That's where we had our farewell and we'll have the cocktails. And all of you order cocktails. It happens once a month, perhaps, maybe once 6 months. हम कितना मिल पाता है आजकल के टाइम में, right? hmm, दोस्तों से. yeah, So it happens rarely or sometimes. So whenever you meet them, you go, you have that drink, you feel nostalgic, you think about your farewell, your college days, you guys catch up and you leave. This is recreational use या जिसको हम बोलते हैं enjoyment के लिए drink yeah, लेना, correct. right? This is just for fun. It is often local language में a lot of people call it partying also. Hmm. This is what partying is. Now here is the important thing in this. When you're enjoying for company and all, the focus isn't on the drink, Hmm. right? The focus is on the company, the environment, the place, the people, right? So, udhar drink is just a side supporting character. It is not
the lead actor or the lead actress. It's not Shah Rukh Khan. It Yeah. is a side role, Chunky Pandey perhaps on the side, right? So that is what is the role that it is playing. Now, when you go on a bit ऊपर जो मैंने ड्रिंक एंड ड्राइविंग का आपको एक्सपीरियंस बताया या Mm. एग्जांपल दिया, दैट इज वेयर harmfulness comes into play or it starts to become problematic. Now here is the catch. Problems चालू होती है ना, तब हमको पता नहीं होता है कि वो कितनी बड़ी problems है. It's only when we end up seeing the consequences that it becomes Yeah. a Correct. worse thing, right? So प्रॉब्लमेटिक यूजेस कि अब स्टीफन पहले तो जाता था सिर्फ दोस्तों के साथ करता था, अब स्टीफन वहां पे बैठता है और कई कबार ध्यान नहीं देता, अरे यार आज तो एक ही जगह 4 कॉकटेल्स हो गए, कई कबार 4 कॉकटेल्स लेके वो निकल भी जाता है और ऐसा नहीं है कि उसके कुछ प्रॉब्लम हुई है अभी तक, ही Mm-hmm. इज डूइंग फाइन। पर 4 कॉकटेल्स लेने के बाद स्टीफन कई कबार ड्राइव भी कर रहा है जबकि उसको पता है कि वो रिस्की हो सकता है, राइट? कई कबार वो 4 ड्रिंक्स के साथ स्मोक भी कर लेता है, दोस्त कर रहे होते हैं तो कहता है अरे एक दो मैं भी पफ ले लेता हूँ, क्या खराबी है, राइट? सो दिस इज वेयर थिंग्स आर बिकमिंग रिस्की, राइट? Mm-hmm. अब हमने चंकी पांडे को शाहरुख खान का भाई बना दिया है और अब वो पिक्चर में बहुत ज्यादा दिख रहा है रिलेटिवली पहले से। अभी भी शाहरुख खान कोई और होगा, बट इट इज चंकी पांडे हु हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम एंड पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड, यार ये इतना क्यों आ रहा है पिक्चर में, ओके? Correct. Correct. एंड देन फाइनली यू हैव, मतलब अब 2 सीढ़ियां बची है, एक है हार्मफुल यूज और उसके बाद हम एडिक्शन में एंटर कर गए। हार्मफुल यूज है जब चंकी पांडे अब सिर्फ भाई नहीं है, अब चंकी पांडे सेकंड लीड है, Mm-hmm. ठीक है, राइट आफ्टर शाहरुख खान। तो पिक्चर कैसी होगी? खराब ही होने वाली है, राइट? सो इसमें क्या होता है कि आपको पता है एक बार स्टीफन का एक्सीडेंट भी हो गया 4 कॉकटेल्स लेने के बाद, उसने Mm-hmm. गाड़ी फुटपाथ पे भिड़ा दी, पर को उसने कहा अरे छोड़ो यार, उस दिन मैं थोड़ा ना स्ट्रेस में हूँगा, अरे मेरा ध्यान भटक गया होगा, अरे होता Yeah. रहता है ये सब, तो सबके साथ होता है, गाड़ी का कंट्रोल थोड़ा बहुत चला जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 4 कॉकटेल्स की वजह से थोड़ी ना हुआ है, कोई बात नहीं। और सा कौन सा मैं रोज ले रहा हूँ, जरूरी है क्या? नहीं। बट द पॉइंट इज कि आपको पता है हार्म हो रहा है, पर उसके बाद भी स्टीफन नेक्स्ट टाइम जा रहा है, दोस्तों के साथ बैठ रहा है, वही, So राइट? here इंस्टेड at ऑफ this point, the person हम्म वो जानता है कि it's knows, not so good for him, but yeah, he still does that. yeah, they know it is harmful and yet they are continuing. शाहरुख खान को ये बात पता है कि चंकी पांडे को सेकंड लीड बनाना, डायरेक्टर को पता है ना ये चीज कि चंकी पांडे को सेकंड लीड बनाएंगे तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक है, राइट? Yeah. प्रॉब्लमेटिक नहीं, हार्मफुल है, बिजनेस Yeah. पैसा नहीं बनेगा, बट वो फिर भी Yeah. वो रिस्क, Right. क्यों? जब पता है फ्लॉप। But now the question is, why do people do that? Because they know it's not the best for them. Why do they jump from वेरी गुड recreational क्वेश्चन, usage? करेक्ट। सो जो कॉजेज होते हैं ना स्टीफन, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर। हमको ऐसा लगता है कि इट इज ऑलवेज लीनियर, कि इस इंसान का पहले से ही विल पावर नहीं है इसलिए इसने ड्रिंक Yeah. करना स्टार्ट कर दिया है। स्टीफन के पास तो क्या कहते हैं, चॉइस है, उसको तो बस अपनी चॉइस चेंज नहीं करनी है, उसको मजा आ Mm-hmm. रहा है इंटरनली इसलिए वो कर रहा है ना? कोई बोलेगा अरे स्टीफन की विल पावर कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, कॉन्फिडेंस होता है ना तो निकल जाता है। Ah. दैट्स नॉट द केस। एक्चुअली में क्या होता है कि ये आपके बॉडी और माइंड से कनेक्टेड होता है, ओके? एंड दिस इज इन समथिंग दैट जस्ट हैपेंस इंस्टेंटली, दिस इज समथिंग दैट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इफेक्ट इट्स हैविंग ऑन यू, राइट? सो टू गिव यू एन आइडिया, आपकी शरीर में आप जब रेगुलरली ड्रिंक लेते हो ना, एक पॉइंट के बाद क्या होने लगेगा, आपकी बॉडी में अंदर चेंजेस आने लगेंगे, आपके माइंड में चेंजेस आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हार्मफुल यूज है ना, उसको ये लगने लगेगा कि यार मेरे को तो दोस्तों के साथ अब मजा तब आता है जब मैं 3-4 ड्रिंक पी लिए, तो दोस्तों के साथ क्या मजा। Mm-hmm.
पहले क्या था, दोस्त मेन थे और अल्कोहल साइड में था। अब अल्कोहल मेन बन गया है, मेन बन रहा है और दोस्त साइड में आ गए। हम्म। राइट? कि एक तो क्यों, ऐसा क्यों आप पूछोगे ना कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपको, दोस्तों के साथ तो ऐसे भी मजा आ सकती है। नहीं, इट्स बिकॉज मैं जब ड्रिंक्स लेता हूँ ना, तब मेरे को एकदम रिलैक्स फील होता है। फिर जब मैं मेरे दोस्तों से बातें करता हूँ, आता है मुझे मजा, क्योंकि वो जो या। मेरे माइंड में थॉट्स वॉट्स चल रहे हैं ना, वो सब बंद हो जाते हैं। हम्म। पर वो तभी होता है जब मैं ड्रिंक करता हूँ। इज इट ट्रू? राइट, राइट, राइट। Do you, it's not possible for those who don't drink. Do you think they never get relaxed? Yeah, They of do, course they do. They do. They just have different right? ways of getting relaxed. करेक्ट, करेक्ट। सो दोज हु स्टार्ट टू, एक तो ये साइकोलॉजिकली जो डिफरेंस पड़ता है कि ऐसा लगने लगता है कि अगर ड्रिंक्स लेंगे तो ही वो लेवल का रिलैक्सेशन मिलेगा। Hmm. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई रिक्रिएशन से वो हार्मफुल बन जाता है। दूसरा इशू ये होता है कि अगर आपका बॉडी में आपके किसी भी तरह के पेन या किसी भी तरह के इश्यूज हैं और आप वो ड्रिंक करने से आपको उनमें थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, हो सकता है आप उस चक्कर में भी कंज्यूम करना ज्यादा Hmm. चालू कर दो। अनदर रीजन इज कि अगर आपको कॉन्फिडेंस का इशू है या आपको थोड़ी सी भी किसी चीज की वजह से एंजाइटी है, डिप्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो ऐसे पता नहीं चलते हैं इजीली, Hmm. तो अल्कोहल की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अल्कोहल या एनी सब्सटेंस फॉर दैट मैटर मेक्स यू थिंक कि आप ठीक हो रहे हो उनकी वजह से, या Yeah, आप वो लोगे तो आप सही रहोगे। yeah. Correct. This reminds me of this series, Big Bang Theory. In Big Bang Theory, there is this Yes, character Raj. He can only talk right, to girls when he is drunk, when and he he is can do drink, it but with a lot of confidence. correct. And Yeah, eventually we realize that that's not the case, right? After a while, exactly. he comes to a point where he himself starts to speak to women and so on, gets comfortable. So it was never about the alcohol, right? Yeah, But he convinces himself that that's the case. yeah, correct. And also, like even with alcohol or smoking, so for many of them, they are now. I have seen some cases कि जहाँ पे थोड़े टाइम बाद if they do not smoke, if they do not have alcohol, they are not able to do some basic things like some daily tasks. Or let's say just let's for example, let's say I have to give a presentation and I have to Yeah, smoke before that. My anxiety is going to kick in. And so they start using it a lot, maybe instead of working yeah, on the main issue. yeah. So you're absolutely right. And one very common experience that I have found, especially in our country, तो हमारी कंट्री में ना कार्गो शिपिंग ट्रैवलिंग कम्यूटिंग बहुत Mm, होता है, राइट? लोकल, स्टेट लेवल, कंट्री yeah. वाइड। तो ऑटो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, नाइट शिफ्ट के कार ड्राइवर्स या कोई भी इक्विपमेंट है, जो ये हमारे कार्स और ट्रक्स या बसेस या टेम्पोज, जो भी बड़े पैसेंजर व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, जिनको कई कबार रात को 9-9 घंटे चलाना पड़ता है, Mm-hmm. 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, राइट? You will find that a lot of them consume tobacco. Mm, च्यूड टबैको ज्यादा कॉमन है, नहीं तो बीड़ी लेते हैं। यू विल फाइंड दे हैव दो स्मॉल पान मसाला या वो पुड़ियाज आती हैं, छोटी mm, छोटी सैशे होते हैं, शाइनी पैकेट्स। यू कैन सी देम एवरीवेयर एट ढाबाज और नियर these people. And the reason for that is this: when you talk to them, they say कि मैडम हमको तो बहुत नींद आती है, हम थके हुए भी होते हैं, अगर हम ये लेते हैं ना तो हम फ्रेश हो जाते हैं, इसको लेते ही mm. हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं और हम रात भर ड्राइव अच्छे से अलर्ट होके कर पाते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप चाय से क्यों नहीं करते, कहते हैं चाय भी पीते हैं पर वो लेवल की फ्रेशनेस नहीं आती। Mm. बिकॉज द Yeah, रियलिटी इज दैट एनी सब्सटेंस दैट यू कंज्यूम, इट हैज अ मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन योर ब्रेन। उसके साथ right. हेल्थ रिस्क भी उतने ही स्ट्रॉन्गर है, Mm-hmm. बट वो जो फीलिंग या इंटेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेगुलर टी कॉफी और अदर एक्टिविटीज, कि अगर आप उसको रेगुलरली कंज्यूम करोगे, एक पॉइंट के बाद आपका बॉडी और ब्रेन भी उसको मांगने लग जाएगा। Right. यू
And that also makes you think that maybe that is the reason कि Hmm. this is only working. You talk to these any of these drivers, आप कभी अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर राज शिफ्ट के या जिनके पास भी आपको पुड़िया दिखे उनसे जाके पूछो, वो आपको यही कहेंगे कि नहीं, इसके बिना तो फ्रेश होते ही नहीं है। हो ही नहीं Hmm. पाता है, कोई भी नहीं हो पाता है, हम सबको यूज करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि Hmm. हमारी बॉडी और ब्रेन को आदत पड़ गई है, ये यूज करेंगे, नींद नहीं आएगी, हमारा काम चलता रहेगा। एंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो ड्राइविंग इज अ वेरी high attention based work, right? Yeah. So it's not like you can have mediocre level of freshness. आपको पूरा अलर्ट होना है, एंड आपके रिस्पॉन्स बस इन ट्रक में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरे लोगों की, चीजों की। So you need to be ऐसा maximum alert. So they do not consume alcohol, rather they consume this क्योंकि इसमें वो हाई नहीं आएगा पर फ्रेश हो जाएंगे, Questions. पर This इफेक्ट तो reminds हो me ही that रहा है। there is, I read this, that there are two types of substance. There are some substance which calms you down, शांत कर देते हैं, like alcohol. So बिल्कुल। people consume alcohol, and हम्म। especially many people say कि पी लेता हूँ तो मुझे एटलीस्ट रात को नींद आ जाती है, एंड करेक्ट फिर करेक्ट। दूसरे ये टाइप के होते हैं which excites your nervous system, दिमाग को और ज्यादा, बिल्कुल। it makes you awake, it makes you alert. या I think this is also what we see कि कई बार based on the job that you have, or some people who करेक्ट। have a lot of problems, in many cases, people who are in a lot of debt, right? People who have been struggling through a lot of the things, या they can't sleep at night. So या for them, maybe they think the best issue is it's just drink alcohol. एक दो ड्रिंक ले लो, अच्छी नींद आ Hmm, जाती है, बढ़िया। exactly. या And बट हियर इज द प्रॉब्लमैटिक फैक्टर इन दिस। हो सकता है वंस इन अ वाइल आप यूज करते हो और कुछ नहीं होता, है ना, आप वो एक ही ड्रिंक, बहुत सारे लोग उसमें क्वांटिटी भी फिक्स रखते हैं कि एक ही ड्रिंक लेंगे। mm, बट व्हाट विल हैपन इज, बिकॉज सोना तो आपको रोज है, yeah, और नींद क्यों रुक रही है, वो रीजन तो ऐसा है नहीं कि अल्कोहल उसको, mm, तो वो रीजन तो वहीं का वहीं रहने वाला है। तो जब अगले दिन फिर से होगा तब आप क्या करोगे? एक पॉइंट आएगा, पहले आप एक बार लोगे मंथ में कि आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस था इसलिए ले लिया, फिर वो दो बार होगा, फिर वो तीन बार होगा। ऑल्सो योर ब्रेन इंटरनली, ऑल्सो योर न्यूरोबायोलॉजी, या जो आपके ब्रेन के कनेक्शंस होते हैं ना, उनको भी उस चीज की आदत पड़ जाती है, mm, राइट? उनको भी आदत पड़ जाती है कि अब नींद नहीं आ रही है ना, तो अल्कोहल दे दो हमको, तो आपको mm, मन करने लगेगा अचानक से बिना किसी कारण के, यार एक yeah, ड्रिंक ले लेती हूँ, है ना, थॉट्स आने लग जाएंगे। इट्स बिकॉज इंटरनली ऑल्सो आपका ब्रेन और बॉडी उस चीज को यूज टू होता जा रहा है, क्योंकि वो इतना इंटेंस फीलिंग है कि आपका बॉडी ब्रेन इजीली उसको भूलता नहीं। yeah. And it will become your go-to response. Yes, कभी भी वही situation में the first thing I should do is let me do this. और वो फर्स्ट टाइम आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन चार, फिर वो धीरे धीरे एक पॉइंट होगा जहां आप रोज रात को ड्रिंक लेना पड़ेगा, या आप बोलोगे कि मैम मैं जिस दिन ड्रिंक नहीं लेती ना, उस दिन मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आती है। जो नींद हाँ, ड्रिंक लेने के बाद आती है वो आती ही नहीं है mm, अदरवाइज, right. right? So this is where you're going towards a harmful use, and then dependence, Yeah, right. जिसमें चंकी पांडे is the lead actor. Mm, And we all know how that has turned out in the past. yeah. So Yeah. this is the point जहाँ पे उनका psychological dependence हो जाता ये साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजिकल भी होता है। आप ये देखेंगे कि जो लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, एक दिन भी बंद कर दे, हाथों में थर थर ऐसा shivering starts, है। they start to tremble, they are not able to eat properly, they are not able to sleep properly. A lot of them have digestion issues as well. Some people also have a lot of dryness, dehydration, all kinds of issues start happening. Right, right. टेक्निकल लैंग्वेज में withdrawal symptoms Withdrawal symptoms. Yes. And this also brings me to the point कि कई बार हम कहते हैं कि like substance चालू करना, that was your choice. So substance छोड़ना भी it's your choice, right? And इसमें ही अगर आपकी will power strong है तो आप आराम से छोड़ सकते हो. But many times people don't realize कि ये withdrawal symptoms they stop you, right? कि अभी if a person who has been smoking more than 10-15 cigarettes a day, and if a person tries to leave that, so body वो withdrawal symptoms दिखाएगा, and बिल्कुल। that's going to, like, even if he has a strong willpower, then It it doesn't would happen, matter. he would not be able to focus on his job Yeah. when he has these withdrawal symptoms. So a very basic example.
नॉट ऑन अ टेक्निकल लेवल बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। आपको पानी पीना है, प्यास लगी है। हम्म, आपको कैसे पता चलता है आपको प्यास लगी है? आपकी बॉडी बोलती है ना, बॉडी या मांगती है पानी। हम्म मुंह ड्राई होने लगेगा, हम्म सूखा हम्म सूखा लगने लगेगा, पानी कहाँ है ढूंढने लग जाओगे, दिमाग में पानी 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 आने लगेगा, हम्म है ना? बार बार टंग मूव करेगी, माउथ में पानी चाहिए पानी चाहिए। ऑल काइंड ऑफ हम्म थिंग्स हैपन। तो अब उस टाइम मैं बोलूँ स्टीफन, अपनी विल पावर स्ट्रांग करो, नहीं चाहिए पानी, सूख नहीं पीना है पानी। कितनी देर करोगे? चलो तुमने 2 घंटा 4 घंटा, आफ्टर अ पॉइंट यू विल ड्रिंक वाटर। राइट। नाउ वाइल वाटर इज नेसेसिटी, वो नेचुरल है और वो अच्छा है। सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, सिगरेट, सिंथेटिक ड्रग्स, एनी सब्सटेंस, ये हमारी बॉडी और ब्रेन को घुस के एक तरीके से हम्म विड्रॉल सिम्टम्स इसीलिए होते हैं कि जब रेगुलरली हम लेते हैं तो हमारी बॉडी और ब्रेन को लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, हम्म, राइट? नाउ सैड थिंग इन दिस इज कि फिजिकल सिम्टम्स तो फिर भी दिख जाते हैं, ट्रेमर्स, शिवरिंग, या मैंने जो बताया डाइजेशन, ब्रीदिंग, जो भी इश्यूज है। वर्स इज आपके फिजिकल विड्रॉल्स नहीं है पर साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स है। साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स आर नॉट appear like they're not clear in appearance to the naked eye. You can't see them clearly. You might, a lot of people, they have depression related symptoms. ओके। Lot of people have anxiety increasing. घबराहट होने लग जाती है, चिंताएं बढ़ जाती है। हम्म। You become panic like. Lot of people become very sad. Lot of people start to cry a lot. They have difficulties. उनको स्पेशली अगर आपके कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पास्ट में रह रुक चुके हैं, जो हर किसी के होते हैं, उनकी मेमोरी ज्यादा आने लग जाती है, राइट? आपको हर चीज में होपलेसनेस फील होती है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ये सब जो सिम्टम्स है, ये हमेशा इतने अपेरेंट नहीं होते हैं खुद को भी और सामने वालों को कि ये विड्रॉल के सिम्टम्स हो सकते हैं। राइट। और उस वक्त क्या लगता है कि यार ये तो, दोस्त भी क्या बोलेंगे उसमें, अगर स्टीफन ऐसा सब कर रहा होगा वो बोलेंगे यार स्टीफन तू तो इससे अच्छा 2 कॉकटेल पी ले यार, शांत तो रहता था, मजे तो करता था, ऐसे चिड़चिड़ कर रहा है, परेशान हो रहा है, ना ढंग से सो रहा है, हर चीज में चिंताएं कर रहा है, हर चीज में तेरे को ऊपर नीचे तेरे मूड स्विंग हो रहे हैं, उससे तो तू ले ले, या राइट? और दे विल बी लाइक अरे ये सब कुछ नहीं है, ये तो सब इसको ना मूड है, बस इसको इसकी पसंद की चीज नहीं मिल रही ना इसलिए ऐसा सब कर रहा है। नो, दे आर एक्चुअल साइकोलॉजिकल withdrawal symptoms, या and they are just going to go away like this. You need to get proper health care services to them, either in the form of medicine or counseling. तो मैं कितनी भी अंदर से स्ट्रांग हूँ, अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे को ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसका मेरे कॉन्फिडेंस या मैं कितनी स्ट्रांग विल पावर की उससे क्या लेना देना। ये हम्म बहुत ही गलत चीज है, और ये बहुत बार अगर कोई एडिक्शन की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लॉट ऑफ टाइम्स जब फैमिली इस तरह की बातें बार बार बोलते हैं या जज करते हैं लोग, तो वो वापस एडिक्शन में भी चले जाते हैं, या क्योंकि उनको भी ये लगने लगता है कि शायद मैं ठीक हो ही नहीं सकता। And I think it's very important to understand that sometimes it's going to be a slow process, and many times, क्रॉनिक। yeah, yes, and many times people don't understand the complexity of the issue. उसकी वजह से sometimes people and main a lot of the times the family is so judgmental about the person. इंसान ट्राई भी कर रहा होता है उसमें से बाहर निकलने के लिए, बट फैमिली इज लाइक तेरा बिहेवियर एंड ऑल दैट, एंड उसकी वजह से शायद वो वापस व्हाट वी कॉल एज रिलैप्स। या बिल्कुल बिल्कुल, रिलैप्स उस वजह से बहुत बार होते हैं। ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स people who are going through addictions are judged. Either they are judged that they are some kind of criminals, deviant, अरे ये तो इससे बात मत कर, पता नहीं इन्फ्लुएंस में क्या क्या कर दे, जबकि वो एक्चुअली बीमार है, राइट? एंड इवन द सिमिलरली, मॉरल कैरेक्टर इज जज्ड कि बिल्कुल बिल्कुल, शायद कि इंसान ही अच्छा नहीं होगा। हाँ नहीं तो कोई अच्छा इंसान थोड़ी ना, हम अच्छे कैरेक्टर के लोग ड्रिंक स्मोक नहीं हम्म, करते हैं, हाँ बट वही। उसका कैरेक्टर से लेना देना नहीं है। वो एक्चुअली जब हम कंज्यूम करते हैं
किसी को पता नहीं होता है कि I might become Mm. dependent unless they are very much aware about their mental health, physical health, past history, which is a very big thing to ask for every human being to Yeah, have, right? तो किसी के पास कोई रिटर्न तरीका नहीं है या मेजर नहीं कर सकते कि हाँ इधर तक रहेंगे तो रिक्रिएशनल ही रहेगा और इसके आगे गए तो हम एडिक्ट हो जाएंगे, किसी के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं। mm, इसीलिए द ओनली वे टू डील विद दिस इज टू नॉट कंज्यूम एट ऑल, विच yeah, साउंड्स वेरी एक्सट्रीम स्पेशली हमारी जनरेशन में, जहाँ हम मूवीज देखो हमारे सॉन्ग्स तेरा प्यार 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 हुक्का बार है या exactly. नशे सी चढ़ गई या दारू बदनाम कर दिया, so many songs, there are so many movies. In fact, I want everyone who's watching this to notice whenever they are watching any YouTube based series or film, can they really observe and count how many times do they see a drinking glass, bottle, a cigarette, even if the actors are not consuming it, but in the background. स्मोकिंग के लिए तो क्या आजकल वो नीचे लिखा हुआ आ जाता है, गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है, अल्कोहल के लिए भी करते हैं बहुत बाहर, Uh, बट how many times does it really appears on the screen? How many actors, celebrities, and not just psychological or substance related, behavioral maybe. mm, Gambling is a addiction. Gambling एक बीमारी है, एक पॉइंट के बाद आपको वो जो हाई आता है साइकोलॉजिकल, yeah, आप उसके पीछे चेस करते जाते हो। एंड येट आप देखो आज हमारी कंट्री में कितने सारे सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग बेस्ड, जो अलग अलग तरह के गेम्स आ गए games and हैं। applications. बिल्कुल बिल्कुल, एंड while इट्स नॉट लाइक दे लीगली दे आर नॉट फॉलोइंग थिंग्स, दे गिव नोटिफिकेशन की जोखिम भरा है, समझदारी के साथ यूज करें एंड ऑल दैट, बट द रियलिटी इज हाउ मेनी पीपल डू एक्चुअली नो कि ये इन चीजों से हमें एडिक्शन का रिस्क है। Mm-hmm. Yeah, जब exactly. स्टीफन दोस्तों के साथ पहली बार कॉकटेल पीने गया था, उसको नहीं पता था ना कि उसको कॉकटेल इतनी पसंद आएगी कि उसको कॉकटेल के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं एक पॉइंट के बाद। Yeah, exactly. And I think that is why it's important to just talk about this issue because बहुत सारी बार, especially like among the youth, it is seen कि, सब लोग कर रहे हैं, it's fun and all. Let me just try it या out. Let me just see. But when you slip into this being dependent on it, even the person will not because even नो, वो particular time, yes. You're very good point, especially youngsters में there's this understanding, सब कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, Hmm. बट रियलिटी इज आप सब कर रहे हैं, सब अडिक्ट नहीं बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे, Hmm. और वो इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि वो पर्सनली उनका मॉरल कैरेक्टर फ्लॉड है या उनकी विल पावर खराब है या वो चूज कर रहे हैं एडिक्टेड Hmm. रहना, वो इसीलिए एडिक्ट होते हैं क्योंकि कोई बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, उनका फैमिली एनवायरनमेंट चाइल्डहुड में इश्यूज हो सकते हैं, वो ट्रॉमा के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो सकते हैं, उनके अनडायग्नोस्ड मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से वो हेल्प करें, उनको उनको ऐसा लगे कि वो हेल्प कर रहे हैं, राइट? देयर कैन बी मेनी रीजंस व्हाई somebody might get addicted and it is impossible to always have all the answers, right? Correct. तो उस सिचुएशन में आप दोस्तों के साथ कर तो लोगे, बट आपकी वो सिचुएशन कितने आगे तक खराब होती रहेगी आपको नहीं पता, एंड देन यू वंडर whether it is worth it or not. Whenever I have had addiction related clients or patients, मैं उनसे हमेशा एक चीज पूछती हूँ, वो कहते हैं हमको बहुत खराब लग रहा है, हम अपने आप को ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम में ही कुछ प्रॉब्लम है, लाइक दे आर वेरी गिल्टी अबाउट इट बिकॉज ऑफ हाउ मच इट्स डिस्ट्रॉइंग, क्योंकि जितना डैमेज खुद पर्सन का होता है उतना आसपास वालों का भी नहीं होता है, राइट? तो दे ऑलवेज ऑलवेज आस्क देम वन थिंग कि जब आपने चालू किया था क्या आपको पता था कि आप इतने बीमार हो सकते हो, एंड द आंसर इज नो. However, while alcohol and cigarettes are much normalized, synthetic drugs, especially opioids, हमारे कॉमन नेम्स जो होते हैं हीरोइन, कोकेन, स्मैक, ऑल्दो अब तो बहुत सारे नए नए स्लैंग्स आते रहते हैं, एंड विच ईच जनरेशन और आई वुड से ईच year there are new terminologies for it. These synthetic drugs are made in a way that they become intensive and they stick
to your system. They've made in a Right, way right. that you will very, very high chances that you will get addicted. Hmm. इनफैक्ट हमारे Exactly. यहाँ पे निमहांस में एक बहुत अच्छी स्टडी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी की है जिसमें वो बात करते हैं कि अगर 25 ईयर्स से पहले आप एक सिप भी लो भले ड्रिंक का या किसी भी सब्सटेंस का जितना यंग एज पे आपने लिया होगा उतने ज्यादा परसेंटेज चांसेस हैं क्योंकि आपके ब्रेन को पता चल गया है कि आपके ब्रेन को वो अंदर एक बार जा चुका है और आपको ब्रेन को पता है कि ये चीज से बहुत इंटेंस इफेक्ट मिलता है right? Other factors are not considered into this, like trauma, mental health issues, stress, hormonal issues. There can be so many things. Genetic That's true. factors. अगर मैं बचपन से ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, जहाँ मेरे आसपास पार्टी, हर सेलिब्रेशन में सब दारू पीते हैं. Happiness means partying with some or the other kind of substance, and it is very normal in our house. Then it is very likely that once I grow up, I also treat it the same way, isn't it? Exactly. So मतलब chances बढ़ जाते हैं काफी. If once you had it, then the like at least the chance would increase compared to a person. So I have one analogy for this. If a person is given like two options, okay, there is two different kinds of road. It's told that one is a slippery road, the other one is a normal road, right? A person can still walk on the slippery road and say कि हाँ पर ऐसे जरूरी थोड़ी हो कि सब लोग गिरते ही हैं slippery road पे मैं बहुत ध्यान से चलूंगा. But still, because if a person chooses to walk on that road, then the chances are that they would fall. So I think a बट person कभी should कभार be स्लिपरी रोड पे चलते वक्त लोगों को ये भी नहीं पता होती कि कितनी ज्यादा इंजरी हो सकती है उनको लगता है क्या होगा ज्यादा से ज्यादा थोड़े फिसल जाएंगे हाथ से सपोर्ट कर exactly, लेंगे पैर थोड़ा चोटी तो लगेगी थोड़ी क्या हुआ है उनको नहीं पता कि इट कैन कम्प्लीटली इमोबलाइज देम exactly. And when you talked about these things, I think it's also very much important because important कि जो लोग सुन रहे हैं, they can know कि okay, if they find themselves in a position like this, or if they see that यस somebody else is in a position like this, what are some practical steps that they could take? Because I'm pretty sure डेफिनेटली that anyone who has been in this position and they might have seen the negative effects on themselves. They might have always thought or else even tried at least once. How do I stop this? But या what can they do with this? Okay, so the things I'm going to tell you are not just applicable for yourself, but even if you notice anyone near you going through Hmm, this, you can tell them. Always, it doesn't have to be dependence. It could be a problematic use where hmm, risky behavior is seen. It could be harmful use where you're seeing that they're neglecting their health and still consuming. So at any stage, this can be used, right? hmm, So the three important solutions that rather, I would say tools rather than solutions that can be used are number one, uh, is having a gatekeeper, guard. हमारे घर में जब चोरी होने वाली होती है हम क्या करते हैं हमको डर लगता hmm. है हमको नहीं पता चोरी कब होगी Yeah, we keep the doors closed, locked we up. keep the doors closed, locked, but still, in spite of that, और हमारे पुराने शाहरुख खान और चंकी पांडे का एग्जांपल लूं अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है चंकी पांडे चले हो सकता है चंकी पांडे के रोल की वजह से प्रॉब्लम हो हर मूवी में रिलीज करने से पहले फिल्म क्रिटिक को बिठा के मूवी दिखाते हैं और उनसे पूछते Hmm, हैं आपको क्या लगा ताकि उस हिसाब से हम चेंजेस कर पाए सिमिलरली आपकी लाइफ में आपके अगर स्पाउस पार्टनर है आपका सिबलिंग है आपके पेरेंट्स से आप क्लोज हो कोई रिलेटिव है टीचर हो सकता है इट कुड बी अ कॉलेज सीनियर जूनियर anyone who you think is trustworthy and they are not consuming and they understand कि you might have slips. I'm not saying you will become dependent, but you might have slips. एंड कब वो स्लिप्स प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं आपको वो ऑनेस्टली बता सके अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो आप उनके साथ शेयर करिए उनको बताइए कि मैंने ये अमाउंट पिया है ये किया है या उनको हमेशा लूप में रखिए ताकि hmm, जब प्रॉब्लम उनको बाहर से दिखने लगे आपको शायद नहीं भी रियलाइज हो सो दे कैन हेल्प यू आउट दे कैन डू व्हाट वो आपको बता सके कि देखो अब ज्यादा हो रहा है अब फॉर एग्जाम्पल जब भी स्टीफन दोस्तों को मिलने जाता था अगर वो साथ में
अपने एक क्या कहते हैं कॉलेज के जूनियर को या अपने घर में अपने छोटे भाई को बताता है या बड़े भाई को बताता कि मैं जा रहा हूँ और मैं कॉकटेल ट्राई करके आया। ठीक है, मैं जाके आया, कॉकटेल ट्राई करके आया। एंड दे सेड ओके, पर ज्यादा मत करना। सपोज उनको पता चल गया, एंड यू आर ऑल्सो, स्टीफन इज ऑल्सो रिच, स्टीफन हम्म, जाके अपने बड़े भाई को बताता है कि भैया, मैंने इतना ज्यादा ड्रिंक किया कि वो कार जो है ना वो फुटपाथ पे भिड़ गई, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ। हम्म, और अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो जब या नेक्स्ट टाइम स्टीफन दोस्तों को मिलने जा रहा है, भैया सामने से बोलेंगे, ध्यान रखना, सिर्फ एक ड्रिंक, उसके बाद गाड़ी मत चलाना, नहीं दो ले ले तो मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। हम्म, या राइट। एंड सपोज उसके बाद भी यू कम बैक एंड देन स्टीफन सेज कि भैया मैं तो फिर से आज 4 ड्रिंक लेके ड्राइव कर लिया, मैं तो भूल ही गया कि ड्राइव नहीं करना था। या मैंने सोचा छोड़ो ना, इतना मुझे लग नहीं रहा था, मैं कंट्रोल में था, मुझे पता चल रहा था मैं कंट्रोल में हूँ। Right? हम्म, So that is when Bhaiya will be like, no, Stephen, this is not that. They can help you uh, create that balance, okay? If you have somebody of that kind. Now let's say ये तो फर्स्ट सोल्यूशन है, बट ये तो अब मेरे को आके सब बोलेंगे कि पूर्णिमा ये सोल्यूशन में आप तो बोल रहे हो, अब मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है ऐसा, तो सारे मेरे जैसे ही हालत में है, मेरे दोस्त। अब मैं हॉस्टल में मेरी रूममेट को बोलूँ, वो तो खुद भी पार्टी कर रही होती है आधे टाइम, वो मुझे क्या ध्यान रखेगी, वो तो कहेगी और पी ले, क्या फर्क पड़ता है। राइट। तो उस सिचुएशन में इफ आई डू नॉट हैव एनीवन नियर मी, हाउ डू आई मेक श्योर दैट दिस इज द बाउंड्री, या इस पॉइंट के बाद प्रॉब्लम है। इसके लिए अलार्म सिग्नल यूज करने का, रेड सिग्नल्स जो मैं बता रही हूँ, कि अगर ओके, ये रेड सिग्नल आपको दिख रहा है, मतलब आपके अंदर के जितने सायरन्स हैं मेंटल, वो बजने चालू हो जाने चाहिए कि दिस इज प्रॉब्लम विच इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स डिपेंडेंसी और प्रॉब्लमेटिक यूज। राइट। फर्स्ट साइन इज, अगर सुबह नींद से उठते ही आपको स्मोक, अल्कोहल या किसी भी तरह का सब्सटेंस जो आप कंज्यूम करते हो उसको करने का मन कर रहा है, उसके थॉट्स आ रहे हैं नींद से उठते ही पहली चीज, देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। बिकॉज हम जब नींद से उठते हैं ना, हमको सिर्फ बॉडी जो नेसेसिटीज है ना उसको कवर करने की कोशिश करता है। हम हम्म, उठते ही पानी पीते हैं, है ना, कुछ या खाते हैं, क्योंकि रात भर हम उसके बिना रहे होते हैं। तो बॉडी वो चीज सबसे पहले मांगती है। अगर उसमें सब्सटेंस और ये भी आ रहे हैं, देन इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो एक, अगर आप कभी भी नींद से उठ के और आपको मन करने लग जाए नींद से उठते ही पीने का, स्मोक करने का एंड ऑल दैट, आपके ब्रेन में एक घंटी बजनी चाहिए कि दिस इज नॉट ओके, समथिंग हैज टू बी डन। इट्स गोइंग ठीक इन है। द रॉन्ग द डायरेक्शन। करेक्ट। फिर सेकंड थिंग इज, एट एनी पॉइंट आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, मॉर्निंग में कोई इशू नहीं है, आप ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट लेते हो पर रोज नहीं ले रहे हो, राइट, एंड और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट जब आप जॉब पे जाते हो और जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, एक ड्रिंक लेके जाना पड़ता है, नहीं तो होती नहीं है प्रेजेंटेशन, घबराहट होने लग जाती है। Yeah, this is a very common factor. A lot of single men and women, when they uh, go on a date or when they go for to meet a romantic partner, so they get nervous. So they take a drink and then go कि confident दिखेंगे, better, अच्छे से handle कर पाएंगे situation, थोड़ा relaxed रहेंगे, नहीं तो anxious रहेंगे। That means that it is problematic because there is no way that it can help your confidence. That is not a connection that can be formed. So it is clearly something that is making you create that illusion, राइट। right? तो वो एक फैक्टर है। या आप सोना, खाना बनाना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके दिन में जो आपको होता है कि मैं ये एक्टिविटी बिना एक ड्रिंक, एक सिगरेट, एक पफ, एक टैबलेट अनप्रिस्क्राइब्ड या इंजेक्शन के बिना नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी सब्सटेंस है, देन इट इज अ प्रॉब्लम, देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। What should a person do after that? Because many people हाँ। realize it, then they don't do anything अब about it, or they घंटी don't know what to do घंटी about it. हाँ, घंटी बज गई। अब मेरे को लगा नहीं नहीं, मेरे को पता है अब प्रॉब्लम हो रही है, अब तो मैं देखना एक ड्रिंक से आगे टच ही नहीं करने वाली। Hmm. पर मैं बैठी, ठीक है,
और मुझे पता भी नहीं चला बात करते करते दोस्तों से मैंने कब 4 ड्रिंक ले लिए या 3 ड्रिंक ले लिए। सो आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल हम्म माय कंजम्पशन। मैं कितना भी कोशिश करूं, मेरे को और लेने का मन कर रहा है, मैं रुक नहीं पा रही हूँ। These elements are the alarm signals, and जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे हेल्थ केयर वर्कर के पास जाना है। दिस इंक्लूड्स नर्सेस, साइकोलॉजिस्ट, doctors, particularly psychiatric doctors, because they have the not because there is something uh, आपके साथ आप में इंटरनली कुछ खराब हो गया है, आपके ब्रेन को इंजरी हो गई है या कोई इशू है, बट प्योरली बिकॉज उनके पास वो दवाइयां होती हैं जो आपके ब्रेन को हम्म वो उसकी तरफ जाने से, और जो आपका लॉस ऑफ कंट्रोल है, आप उसके बिना काम नहीं चला पा रहे हो, सुबह उठते ही जरूरत पड़ रही है, उन चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। काउंसलर के पास और कुछ नहीं हो, मैं कहती हूँ आप एक अच्छे काउंसलर जिसको थोड़ा बहुत भी एडिक्शन की नॉलेज है, एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या साइकाइट्रिक सोशल वर्कर से आप एक काउंसलिंग सेशन ले लो कि मैम ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको, मैं बताना चाह रहा था, डू यू थिंक इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड हम्म अपॉन प्रॉपरली और नॉट। बस एक सेशन कितना ही पैसा जाएगा, आपको पैसे नहीं डालने, और टेलीमनस की फ्री हेल्पलाइन चल रही है पैन इंडिया। या एक फोन कॉल, एक फोन कॉल हम हमारी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, एक फोन कॉल हम अपने लिए, अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के, राइट। करेक्ट इनफैक्ट अगर आपके पास मोबाइल फोन या आप किसी रैंडम पर्सन से भी चलते फिरते बोलोगे प्लीज एक कॉल करना है, आप फोन दे दो, वो दे देंगे आप, ठीक है। तो एक फोन कॉल, टेलीमनस के स्टेट वाइज हेल्पलाइन चल रहे हैं, आपकी पसंद की लैंग्वेज में मिल जाएंगे, दे आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल और वहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। अच्छा और कुछ नहीं है तो आप एटलीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप अपने आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हो। या उधर आपको कोई ना कोई डॉक्टर जरूर मिलेगा, कोई ना कोई साइकाइट्रिस्ट जरूर मिलेगा। हो सकता है कि हमेशा डॉक्टर्स ये चीजों को इतनी रिफाइंड आंखों से ना देख पाए, बट साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट हमेशा इन चीजों में कर पाते हैं बिकॉज दे आर ट्रेन दैट वे, या राइट राइट। तो आप रीच आउट करो। इफ रेड सिग्नल, हम गार्ड बाहर है और वो सीटी बजाने लगता है और हमको लगता है कि शायद चोर है, हम हमको पता नहीं है कि नहीं, पर डर लग रहा है, हम क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो किसी स्ट्रांग इंसान को बुलाएंगे जिसको इसके बारे में पता है। बट मोस्ट लाइकली मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई गार्ड ने सीटी बजाई तो बाउंसर्स को बुला लिया या बॉडीगार्ड्स को बुला लिया, सब सबसे पहले पुलिस को फोन करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चोरी हुई है कि नहीं, चोर ने कुछ पीछे निशानियां छोड़ी है कि नहीं, राइट। अब उस टाइम में फायर फाइटर्स को बुला लो, वो क्या करेंगे आके? या कुछ नहीं, राइट। तो उसी तरीके से साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, साइकियाट्रिक नर्सेस, ये सब ट्रेंड होते हैं इस चीज के लिए, तो हम्म उनके पास ही जाना चाहिए। प्रेफरेबली नहीं जा सकते आप टेलीमनस हेल्पलाइन के थ्रू फर्स्ट कांटेक्ट बना सकते हो, और भी बहुत सारी हेल्पलाइंस है। नेशनल इंस्टीट्यूट है निडा करके, वो ड्रग अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं 70s से, उनके भी हेल्पलाइंस चलते हैं, आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हो रिसोर्सेज से। एंड मेरे जैसे बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अ, अभी तक हमने देखा है कि वट एवर वी हैव looked at is that this is a complex issue and many times you need help. You should not be afraid to ask for help and do करेक्ट। please do visit a psychiatrist or psychologist any इवन व्हेन government इट कम्स hospitals. टू मेडिकेशन, आई हैव हैड पीपल टेल मी कि मैडम, मैं बोलती हूँ कि आप सिगरेट क्यों नहीं छोड़ने की कोशिश करते, कि मैम छोड़ना तो चाहते हैं पर ऐसे छूट नहीं रही है। तो मैं उनको कहती हूँ आप मेडिकेशंस की हेल्प लीजिए, इसलिए नहीं छूट रही है कि या तो आपका माइंड या आपकी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो गई है, Mm-hmm. तभी प्रॉब्लम आएगी ना छोड़ने में। अगर खुद से छूट पा रही है देन इट इज नॉट अ डिपेंडेंसी इशू। Right. सो अगर आप वो हो
तो वो नहीं छूटेगा ऐसे, क्योंकि आपके बॉडी और माइंड को आदत है, राइट। हम्म और हम्म, ऐसे अनफॉर्चुनेटली कोई चाबी बनी नहीं कि हम वो डॉल्स में करते थे छोटे थे, रिवा बस ऐसे चाबी वी घुमा कुड दी और रिवाइंड। वो वापस चलने लग गई, राइट। तो कहते हैं नहीं, बट मैम मेडिकेशन में तो कितने साइड इफेक्ट होते हैं। आई कैन अश्योर यू that most of the substances that are misused and abused have much, much, much more harmful effects than any psychiatric medication which is prescribed. Exactly. And I think I have heard this kind of argument. And, we don't want to go to somebody, a psychiatrist, because the medicines that they give, it might make us dependent on it. But you should go to that because maybe you're dependent already on something else. I And think that something else is not it's research, that something else is made in a way that will harm your brain and body. exactly. And the more you prolong it, the harder it will be. Plus, Hmm. more importantly, क्या मेडिसिन इसलिए बनाते हैं कि आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओ? नहीं, सब्सटेंसेस और अब्यूज इसलिए बना है कि आप डिपेंडेंट हो जाओ। Yeah. डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं? क्यों हॉस्पिटल्स में साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है? बनाया ही क्यों है वो डिपार्टमेंट? अगर उनको डिपेंडेंसी क्रिएट करनी होती तो क्यों ये सब करते हैं ना। Hmm. ऑल्सो क्या है उनकी उनकी ट्रेनिंग, यही तो है कि मेडिसिन कैसे यूज करें कि स्मॉल Yeah. क्वांटिटीज में वो हमको हीलिंग में हेल्प करे। Exactly. And So which that is why even you don't get prescription is dependent on also the very medicine, important. and you don't go and take the medicines all by yourself. And which is why without a doubt, एक चीज अगर viewers और कुछ नहीं समझे, एक चीज I really want them to understand is there is no, कोई भी ऐसा नशा नहीं है, कोई भी anything that gives you a high, any behavior that gives you a high, any substance, be it alcohol, be it a cannabis product, be it a tobacco product, be it a synthetic or an artificial drug, anything that is Hmm. giving you a high and you're consuming will have significant and evidently appearance में ही apparently more health related negative consequences than any prescribed psychiatric medication which is authorized and given by a psychiatrist, a Correct. trained psychiatrist. Hmm. Correct. Correct. राइट। Exactly. ये अगर अगर किसी को भरोसा नहीं, आप गूगल पे जाके आप टाइप करो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अवेयरनेस, आप जाइए निमहांस की वेबसाइट पे, आप जाइए यूएस में सब्सटेंस अब्यूज की सैमसा करके ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, आप इनमें से किसी पे भी जाएंगे, आपको उस पे तुरंत इनके बारे में आर्टिकल्स Hmm. वीडियोस सब मिल जाएंगे। एंड इवन इफ आप इनमें से किसी के प्रोफेशनल को इन वेबसाइट्स पर ढूंढ के ईमेल भी करेंगे तो आई एम श्योर आपको रिस्पॉन्स में ये ही मिलेगा। Exactly. Yes. So I think this is a good place to end the podcast, right? यस, आई We थिंक have हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारा बहुत सारा. इंफॉर्मेशन Yeah, कलेक्ट हो गया, एंड एट very दिस much. पॉइंट दे विल In बी लाइक very कि पूर्णिमा यू आर ओनली टर्निंग इनटू चंकी पांडे, नो। या but definitely it was something that we could learn a lot from, right? Especially ये चीज समझना कि how psychologically as well as physically you become dependent on substance use, right? And it's not just about willpower. You can come out of this. So to conclude, if you are someone who has been facing these kind of issues, right, you can please do visit a counselor, please do visit a psychiatrist, please do visit somebody who can professionally help you. And then that being said, Ms. Purnima, she's also working as a substance use counselor, and I'll drop the link in the description where you can get in touch with her if you have any issues like this or if you have any other questions for the same thing. Thank you so much, Ms. Purnima. It was really थैंक great यू स्टीफन। talking about all this, and hope we can एब्सोल्युटली, maybe in future dwell deeper into such issues. definitely. And thank you for all the listeners out there who've taken out their precious time and given to this particular uh, topic, which is it's I think it is turning into a Mm, huge social epidemic on its own. And I hope that it has helped you or someone you know in their healing journey. yes, yes. Once again, thank you so much.